Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today I am here once again with you where I'll be sharing ways to keep yourself motivated during your drop year or whether you are preparing for any other competitive examination. So let's get into the video. So now when you drop a year for preparing for any entrance exam या किसी भी एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं तो it becomes a double edged sword, like दो धारी तलवार की तरह हो जाता है, where we won't be able to understand कि dropping a year would actually benefit us or not, कि अगर इससे भी कम मार्क्स आ गए तो क्या होगा. कभी कभी नेगेटिव थॉट्स स्टार्टेड कमिंग टू आवर माइंड कि यार नहीं हो पाया तो क्या होगा. कभी कभी अपने आप को वर्थलेस लगने लगता है. So I have jotted down 5 important points which if you follow those, I guarantee you that you will definitely be able to achieve your goals, achieve your target. So I'll tell you. So the first point that is important is you should make a proper schedule. When I say make a proper schedule, it doesn't mean that कि कोई कैसे भी schedule बना लेना है. मतलब if you are someone who used to study 5 hours or 6 hours a day and suddenly you woke up and you are saying yourself कि नहीं आज तो मुझे 12 घंटे पढ़ना है. So that is not humanly possible. You should make a realistic goals, like you would be able to ultimately study 12 hours कि लेकिन for next day you will study 12 hours, फिर उसके अगले दिन you will study 12 hours, but third day you will back to the day one and फिर लगेगा कि यार मैं तो सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ता था, now I won't be able to study 12 hours. So no, don't do like that. Gradually increase your speed. Now suppose you study for 6 hours today. Now कल सुबह उठो तो make yourself कि हाँ आज मुझे 7 घंटे पढ़ना है, and then like gradually keep on increasing your targets, and ultimately that day will come when you will actually be able to study 12 hours a day. So also if I say make a proper schedule, you should maintain a diary for yourself. Like diary का मतलब क्या है कि अपना एक points बना लो उस डायरी में. Like first point, like orthopedics में आज मुझे nerve injury ख़त्म करनी है, okay? या फिर मुझे surgery में types of shocks ख़त्म करने हैं आज, या फिर उसके फिर बाद में थर्ड पॉइंट यू राइट डाउन कि मतलब मुझे उन दोनों के MCQs ख़त्म करने हैं आज. So like that make a realistic small targets, jot it down in your diary और ठीक है, और उसको फिर अचीव करने की कोशिश करो, क्योंकि don't be too harsh on yourself, okay? When you become too harsh on yourself, ultimately वो अचीव नहीं हो पाता है डेली टारगेट, and at the end of the day you will feel bad about yourself कि यार मैंने तो सोचा था कि ये अचीव हो जाएगा और अभी अचीव ही नहीं हो पाया, मैं तो कर ही नहीं पाया. So ऐसे टारगेट्स बनाओ कि तुम उसको अचीव कर पाओ at the end of the day. So you would be happy also, ठीक है? So maintain a proper schedule is one point. Now the second point is very important. You should maintain a proper lifestyle for yourself, okay? When I say a proper lifestyle, don't skip your meals, eat healthy, take your meals in time. If you are someone who used to exercise previously, don't miss that, take your time. 1-2 मतलब घंटे निकाल लो वहाँ से और तुम एक्सरसाइज भी करो, गो ऑन अ वॉक इफ़ यू आर समवन, ठीक है? ऐसे मतलब कीप योरसेल्फ टाइम. मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप को केज कर लेना है एक रूम में एंड यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद एनीवन. अपने फ्रेंड्स भी अगर इफ़ यू आर समवन मतलब स्टे अपने फ्रेंड्स से भी कनेक्टेड रहो, लाइक दोज फ्रेंड्स हु एक्चुअली मोटिवेट्स यू टू वर्क हार्ड, एक्चुअली इनकरेजेस यू. तो उन फ्रेंड्स के साथ अपना थोड़ा मिनी ब्रेक्स भी दो, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, ओके? डोंट बी वेरी हार्श. अल्टीमेटली क्या होता है कि इफ़ यू मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लेते हो तो दैट डिप्रेसिव थॉट्स कम इन योर माइंड. सो टू अवॉइड दैट मिंगल विद योर स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, take time. So like that, maintain a proper and healthy lifestyle for yourself. That is point number 2. Now coming to the point number 3, that we all, I guess majority of us do that, we tend to compare ourselves to other. कि क्या होता है कि कभी कभी we have a batchmate or we have a colleague, ठीक है? अगर उसका ग्रेड हमसे ज़्यादा अच्छा आ जाता है और इफ़ दैट पर्सन इज़ समवेयर हाई लेवल में, मतलब अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया, देन वी थिंक कि यार इसका कैसे हो गया, यार ये तो मेरे से अच्छा नहीं था पढ़ने में, या फिर इसका कैसे हो गया, यार ये तो बिल्कुल ही मैं मुझसे पीछे रहता था मेरी क्लास में, और इसको कैसे कॉलेज मिल गया, इसका कैसे सिलेक्शन हो गया. तो लाइक दैट वी टेंड टू कंपेयर आवरसेल्व्स टू अदर्स, एंड गाइज यू शुड नेवर डू दैट. वी ऑल हैव आवर ओन टाइमलाइंस. गॉड हैज सेट आवर ओन टाइमलाइंस. वी हैव आवर ओन सीजन.
वी हैव अ वो टाइम वेयर वी वुड शाइन, ठीक है, अब वो उनका टाइम है, वो उनका टाइम है, उन्होंने शाइन कर लिया ना, योर टाइम विल कम, यू नो. आई हैव अ पेज हीलिंग न्यूट्रोफिल वेयर आई कीप ऑन शेयरिंग माई थाट्स, यू नो, ताकि ऐसा डिमोटिवेट ना हो. यू कैन गो एंड आई एम श्योर यू विल, यू नो, फील गुड वाइल रीडिंग दोज, यू नो, पैराग्राफ्स दैट आई राइट. सो यार, तो ऐसा नहीं है कि यार तुमको मिलेगा ही नहीं, यू नो, कीप ऑन डूइंग योर हार्ड वर्क एंड अल्टीमेटली यू विल ऑल्सो कम आउट विथ फ्लाई कलर्स डेफिनेटली. सो या, don't ever compare yourselves to others. Now the fourth point is very important. It is also similar to the previous one, that is cut yourself off from the social media. When I say cut yourself off from the social media, I really mean it, because you know social media भी हमको वैसे ही डिप्रेसिव थॉट्स देने लगता है कि यार कोई मालदीव जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, उसकी स्टोरी हमने खोल ली, एंड देन फिर से ऐसा लगने लगता है कि यार क्या यार, हम वी आर स्टडिंग एंड वी आर स्टक हेयर, और फिर हमको लगता है कि नो, आवर लाइफ इज़ बैड. नो, यू नो, कट योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम द सोशल मीडिया. फिर वहाँ पर एक रील्स का सेक्शन आ गया इंस्टाग्राम पे, एंड दैट इज़ रियली एडिक्टिव, आई टेल यू. दैट हैज़ हैपन टू माई सेल्फ ऑल्सो. व्हेन यू गो देयर इज़ नो एंड टू इट, ट्रस्ट मी. सो कट योर सेल्फ ऑफ. यार कुछ महीने की बात है, उसके बाद यू नो देखते रहना, पूरा टाइम सोशल मीडिया यूज़ करना, पूरा टाइम इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ करते रहना. और अगर इफ़ यू आर समवन हु एक्चुअली डोंट वांट टू क्विट, या उनका कुछ पेजेस है स्टडीग्राम से एंड दे वांट टू मतलब वांटेड टू रन, सो क्या होता है कि जस्ट कीप योर सेल्फ दैट टाइम. इंस्टाग्राम में दैट टाइम थिंग इज़ देयर वेयर यू कैन एक्चुअली सेट योर टाइम कि इतने से इतने टाइम तक आई हैव टू, मतलब मुझे इंस्टाग्राम चलाना है. मतलब ऐसे कर लो कि ये टारगेट मुझे ख़त्म करना है तो उसके बाद ही मैं इंस्टाग्राम चलाऊँगा, उससे पहले मुझे इंस्टाग्राम नहीं चलाना है. सो लाइक दैट. तो एक टारगेट सेट करके कि इतने टाइम तक करना है, तो लाइक दैट यू डू. सो वैसे तो यू शुड कट योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम द सोशल मीडिया. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. आई वॉज नॉट एबल टू, यू नो, द सोशल मीडिया इज क्वाइट डिस्ट्रैक्टिव एक्चुअली. सो या, कट योर सेल्फ ऑफ. Now the last point is keep on evaluating yourself. You know, when you evaluate yourself, you know क्या होता है कि कभी कभी हम कोई पढ़ते हैं तो हमको ऐसा स्यूडो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दिस थिंग इज़, ये हमने टॉपिक पढ़ लिया है, हम तो बहुत ही क्लियर हो गया, अब हम इससे कुछ भी पूछ लो हम कर लेंगे. तो दैट स्यूडो कॉन्फिडेंस डेवलप इन आवर माइंड. तो वो कैसे खत्म होता है? लाइक कीप ऑन गिविंग मॉक टेस्ट. मतलब 2-3 हफ्ते में यू कीप अ डे फॉर द मॉक टेस्ट, और उस दिन जाके तुम मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है. तो उससे क्या होता है कि ऐसा स्यूडो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता. बिकॉज रिसेंटली ऑल्सो दिस एग्जाम वाज सो मतलब लाइक दैट कि मतलब वैसा ही था कि the topics were very easy but the options were confusing. So like that, so that you don't build that pseudo confidence. जो भी मतलब, और don't worry यार, don't worry about you know कि गलत हो गया या कम मार्क्स आ गए तो क्या होगा. It's okay यार, वो that's not एक्चुअल एग्ज़ाम, यू नो, दैट इज़ एक्चुअली फॉर इवेल्युएटिंग योर सेल्फ. सो मतलब देख लो, सब करने के बाद जाओ वहाँ पर मतलब उसके आंसर सेक्शन में, एंड यू नो सी कि कहाँ गलती करते हो, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, फिर उसको भी अपनी डायरीज़ में नोट डाउन कर लो, ठीक है. जस्ट नोट डाउन इन योर डायरी कि कहाँ पे एक्चुअली यू मेक अ मिस्टेक, यू नो. सो अगर तुम उसको इवेल्युएट कर लोगे तो इट वुड बी ईजी एट द एंड ऑफ द डे कि कहाँ पे गलती हो यू एक्चुअली डू. So these are the 5 points that I have jotted down. I have jotted down these points thinking about myself also, because I myself have gone through these phases. So I want you to, you know, don't go through these and, you know, follow these steps. So that's it for today's video. I hope you like my video. If you do, like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon to not miss any update. You know, trust yourself, keep on doing hard work. I wish you all the best in life. You know, your time will come, you are definitely gonna shine, and it's okay. It's definitely okay if you are not able to achieve something. It's okay यार, we all are humans, you know, we all make mistakes. और अगर एक बार में नहीं हो पाती है कोई चीज़ तो it's fine यार. Your time is ultimately going to come and you will shine. So yeah, I hope you keep on working hard and I wish you all the best in life. I'll see you very soon in the next video. Till then, bye bye.